Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. We apply micronutrient through foliar nutrition. Not only micronutrient, we also apply the urea. Generally 2% urea application is used for foliar feeding. So some nutrients, particularly micronutrients, are applied through foliar application, and soil application is not recommended because only minute quantity is required for micronutrient and they are highly reactive and they get fixed into the soil. That's why their foliar application is recommended. तो जो micronutrients हैं, चाहे आयरन है, जिंक है या बोरोन है, उसको हम foliar application करते हैं और ये foliar application बहुत important है इन nutrients के लिए. And zinc sulfate foliar application is very common, about 0.5%. Then urea 2%. Foliar application is done, and the other micronutrients like iron or boron generally 0.25 to 0.5% application is done. So these nutrients are dissolved in water and these application is made over the canopy. मतलब हम प्लांट के ऊपर इसका पानी में सॉल्यूशन बना के स्प्रे करते हैं. But the important thing is that what is the correct time फॉर द अप्लीकेशन. हम दिन में किस समय इसको अप्लाई करें, सुबह करें, दोपहर को करें, शाम करें, और क्यों करें, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, व्हाट इज द करेक्ट टाइम. टाइम ऑफ अप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हाई दिस टाइम इज इंपॉर्टेंट. सो आई विल टेल अबाउट द टाइम ऑफ अप्लीकेशन, किस समय हमको स्प्रे करना चाहिए, दिन में किस समय हम स्प्रे करें. सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हेन वी अप्लाई दिस न्यूट्रिएंट, मिक्सिंग दिस न्यूट्रिएंट इन वाटर एंड अप्लाइड on the canopy, means on the leaves, then these nutrients are absorbed by the stomata and the epidermis. So this is the leaf, this is the leaf. ये मैं आपको एक बता रहा हूँ, ये एक डायग्राम बना करके, ये लीफ है और इस लीफ पे जब हम अप्लाई करते हैं, ओके, सो स्प्रे इज देयर and this water is retained on the leaf surface, then this water or we can say nutrient is absorbed through the stomata. ये मैं आपको ये blue line this whole are the stomata. So these are the stomata. So this spray means nutrient enter into through this stomata. So this stomata is very important. These are the stomata. Then secondly, the spray is over the entire leaf surface. Then this is the epidermis, outer layer. This nutrient movement is also through the epidermis. So another factor or another surface is the epidermis. So it means the nutrients enter through stomata and epidermis. तो जो nutrient move करेगा लीफ के अंदर, वह तो स्टोमेटा के थ्रू जाएगा या एपिडर्मिस के थ्रू जाएगा. एंड स्टोमेटा इज ओपनिंग, सो देयर इज अ डायरेक्ट एंट्री. एंड एपिडर्मिस, क्यूटिकल इज देयर, क्यूटिकल इज हार्ड एंड ये बहुत हार्ड होती है क्यूटिकल, बहुत लीव्स की तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो उसमें धीरे धीरे एंट्री करता है. तो एंट्री, रेट ऑफ एंट्री थ्रू स्टोमेटा इज वेरी फास्ट एंड बट इन एपिडर्मिस इट इज स्लो. बट एज फार एज टोटल क्वांटिटी इज कंसर्न, क्योंकि देखिए पूरी एपिडर्मिस है पूरी लीफ में, तो यहाँ एपिडर्मिस ज़्यादा एरिया उसको देती है एंट्री करने के लिए, लेकिन उसका रेट बहुत कम है, धीरे धीरे जाएगा क्योंकि क्यूटिकल उसमें वैक्स हैं, क्यूटिकिल्स हैं और बड़ी हार्ड लेयर होती है. तो इसलिए हम उसको सरफेस सॉल्यूशन में वी मिक्स सम सर्फेक्टेंट ताकि वो उसका सरफेस टेंशन कम हो, उसमें स्प्रे कर सके और स्प्रे जो है जो थ्रू हमने न्यूट्रिएंट दिया है वो एंटर कर सके. बट दिस स्टोमेटा आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि दिस इज द ओपनिंग. स्टोमेटा जस्ट ओपनिंग लाइक स्ट्रक्चर, तो ये ओपन हो जाता है स्टोमेटा और उसमें ये एंटर कर जाता है. इट मीन्स दिस क्वांटिटी or we can say the rate of the nutrient is decided by the opening of the stomata. If stomata are open, then this nutrient will move through the stomata and reach into the cell. तो अब इसका मतलब कि स्टोमेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. एपिडर्मिस में तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि क्यूटिकल को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्टोमेटा अगर ओपन है तो वो जल्दी एंटर कर जाएगा. स्टोमेटा कब ओपन रहता है? स्टोमेटा आर ओपन ड्यूरिंग डे टाइम. तो इट मीन्स तो हमको डे टाइम पे ही हमको इस पे स्प्रे करना है. बट इन डे टाइम, मॉर्निंग इज देयर, इवनिंग इज देयर, नून इज देयर, आफ्टरनून इज देयर. डे के बहुत टाइम है, सुबह, दोपहर, शाम, कब हम करें? तो इट मीन्स व्हेन मैक्सिमम स्टोमेटा आर ओपन. सो इट मीन्स द टाइम इज व्हेन मैक्सिमम स्टोमेटा आर ओपन. उस समय हमको स्प्रे करना चाहिए जब सबसे ज्यादा स्टोमेटा खुले हो, फुली ओपन हो.
पार्शियली ओपन ना हो, फुली ओपन हो। अब ये जो स्टोमेटा ओपन किस समय रहते हैं, देखिए व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा का मेन फंक्शन क्या है, गैसियस एक्सचेंज, CO2 और O2 का फोटोसिंथेसिस के लिए और रेस्पिरेशन के लिए जो गैसियस एक्सचेंज होता है उसके लिए है। देन ट्रांसपिरेशन जो होता है इसके थ्रू स्टोमेटा होता है। तो अगर लाइट बहुत ज़्यादा है, लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर इज हाई, देन देर इज मोर ट्रांसपिरेशन लॉस। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो ट्रांसपिरेशन लॉस ज़्यादा होगा, एंड टू अवॉइड दिस ट्रांसपिरेशन लॉस स्टोमेटा आर क्लोज, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो इसका मतलब हाई टेम्परेचर अगर है तो स्टोमेटा क्या है, क्लोज है, क्योंकि हाई टेम्परेचर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, प्लांट से ज़्यादा वाटर लॉस करेगा, तो उस कारण से स्टोमेटा क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे जब टेम्परेचर इज हाई और हम उसमें स्प्रे कर दें, देन एंट्री विल बी पुअर। सेकेंडली, हाई टेम्परेचर वाटर विल एवापोरेट। अब इसके ऊपर वाटर है, जो वाटर ये जो हमने स्प्रे किया, ये डॉट्स मान लीजिए स्प्रे हैं, अब हमने इस पर जो स्प्रे कर रखा है ये, अब ये हाई टेम्परेचर क्या करेगा, वाटर क्या करेगा, एवापोरेट कर जाएगा और न्यूट्रिएंट्स कहाँ रह जाएंगे, यहीं पर रह जाएंगे, फिर एंटर नहीं कर पाएंगे। अब वाटर मीडियम चाहिए, उसके थ्रू ही ये मूव करता है। तो इसका मतलब कि हाई टेम्परेचर पे देयर आर टू प्रॉब्लम, नंबर वन स्टोमेटा आर क्लोज, नंबर टू एवापोरेशन ऑफ द वाटर ऑन द फ्रॉम द लीफ सरफेस। तो हाई टेम्परेचर जब है तो हमको इसको नहीं करना है और स्टोमेटा क्या हो, ओपन हो। सेकेंडली, हाई लाइट इंटेंसिटी, अगर लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज धूप निकल रही है, तो भी क्या होगा कि इस हाई लाइट इंटेंसिटी पे भी स्टोमेटा क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हाई टेम्परेचर भी होनी चाहिए और हाई लाइट इंटेंसिटी भी नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली, देयर शुड बी नो विंड, विंड स्पीड, मतलब विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर नहीं तो क्या होगा, ये सारा स्प्रे उड़ जाएगा, इस पर रुकेगा ही नहीं। इस पर क्या होना चाहिए, स्टिक होना चाहिए। अगर हवा चल रही है, विंडी कंडीशन इज देयर, देन स्प्रे विल मूव, ड्रिफ्ट हो जाएगा, स्विफ्ट कर जाएगा और इस पर नहीं आएगा। तो हवा भी नहीं चलनी चाहिए। तो दो हमारे फैक्टर अभी हमने देखा। नंबर एक तो टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना हो, लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा ना हो। सेकेंडली, उसमें विंड, उस समय हवा बहुत तेज नहीं चल रही हो। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो फिर ये जो है इस पर नहीं रुकेगा स्प्रे। इससे क्या है कि जो कोई स्ट्रेस नहीं हो प्लांट में, उसमें अगर स्ट्रेस माना कि वाटर स्ट्रेस है या ड्राउट है या लो टेम्परेचर है, तो उस समय क्या होगा, या कोई डिसीज है, तो जब प्लांट स्ट्रेस में होते हैं, चाहे टेम्परेचर स्ट्रेस हाई हो, लो हो, या वाटर का स्ट्रेस हो, बहुत कम पानी हो, तो क्या होंगे, सरफेस लीफ रोल हो जाती है, विल्टेड हो जाती हैं, उस समय भी लीफ सरफेस एरिया भी कम हो जाएगा और स्टोमेटा भी ओपन हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि स्प्रे करते समय प्लांट में कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ठंड पड़ रही है या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है या इसमें बहुत ड्राउट हो गया है, तो लीफ सरफेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन जो ड्राउट कंडीशन होती है या रेनफेड सिचुएशन होती है, सॉइल मॉइस्चर सफिशिएंट होता है, तब हम उसको स्प्रे करते हैं, प्रोवाइडेड दैट लीव्स आर नॉट रोल्ड एंड विल्टेड। अगर मॉइस्चर कम है, हमको फुल स्प्रे ही करना चाहिए जब सॉइल मॉइस्चर कम है, क्योंकि वहाँ तो मॉइस्चर अवेलेबल इतना सफिशिएंट नहीं है कि रूट उसका एब्जॉर्व करें। लेकिन इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि लीफ रोल कर जाए, या लीफ, आप देखा होगा लीफ रोल कर जाती है, मुड़ जाती है, या उसकी विल्टिंग हो जाती है, उस समय ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो नाउ दिस आर द सम स्पेसिफिक सिचुएशन। तो अब अगर हम दिन के समय की बात देखें कि हमारा टेम्परेचर भी कम ना हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना हो, स्टोमेटा भी ओपन हो और वो एवापोरेट भी ना करे, और मैक्सिमम स्टोमेटा ओपन हो, तो ये सिचुएशन हमें दो टाइम मिलती हैं, इवनिंग एंड मॉर्निंग। सुबह के समय और शाम के समय हमको ये सिचुएशन मिलती है। टेम्परेचर जनरली 24 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 24 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, 25 से कम है, तो ये एक सही टेम्परेचर है जिसपे कि न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होता है। तो इवनिंग में हम किस समय हम करें, जब बहुत तेज़ धूप ना निकले। अब गर्मियों में तो बहुत जल्दी धूप निकलाती है, 8-9 बजे बहुत तेज़ धूप हो जाती है, तो हम जल्दी कर लें। विंटर में सूरज देर से निकलता है, तो हम 7, 8, 9, 10 बजे तक भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द सनराइज, कि सन कितनी जल्दी निकल रहा है, उसकी इंटेंसिटी क्या है। तो अर्ली इवनिंग हम इसको बोल सकते हैं, अर्ली इवनिंग करना चाहिए हमको, जब सनलाइट बहुत ज़्यादा ना हो। एंड सॉरी, ये अर्ली मॉर्निंग, नॉट इवनिंग, तो लेट होनी चाहिए ये, कि जब सूरज बहुत तेज़ ना निकला हो गर्मियों के दिनों में, तो ये 8-9 बजे तक हमें स्प्रे कर देना चाहिए, क्योंकि 9 बजे का धूप बहुत तेज हो जाती है। अर्ली इवनिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग, लेट इवनिंग, जब 4-5 बजे का धूप जब कम होने लगे, तब हमको इसका स्प्रे करना चाहिए। तो 2 टाइम आर गुड टाइम फॉर द स्प्रे। अर्ली इवनिंग 6-7-8 बजे तक हम कर दें, डिपेंड्स अपॉन द समर सीजन और विंटर सीजन। देन द लेट इवनिंग, कि जब 4-5 बजे के बाद जब धूप क्या होने लगे, कम होने लगे। बट इन द इवनिंग द प्रॉब्लम मे बी दैट
एंड सम प्लांट्स लीव्स आर रोल्ड, कुछ प्लांट्स की लीफ रोल हो जाती हैं, एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज रिड्यूस्ड। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो उसका एब्जॉर्प्शन, उसका मेटाबॉलिज्म, उसका ट्रांसलोकेशन वो भी क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट इन इवनिंग, इन मॉर्निंग आवर्स leaves are not rolled, metabolic activity is maintained, photosynthesis is there, so it means there and nutrient is moved, entered and metabolized. So that's why early morning hours are better condition. लेकिन अगर मान लीजिए समर सीजन है और हमने कर दिया स्प्रे सुबह के समय 8-9 बजे, और मान लीजिए धूप उसके बाद बहुत तेज हो गई, लीफ रोलिंग होने लगी, विल्टिंग होने लगी, तो ऐसी सिचुएशन में हमें लेट इवनिंग में करना चाहिए। तो इट डिपेंड अपॉन सीजन आल्सो, वेदर इट इज अ विंटर और समर। तो समर सीजन में हमको फिर लेट इवनिंग जो आवर्स हैं वो हमारे लिए बेटर है, क्योंकि रात ठंडी हो जाएगी और मेटाबॉलिक एक्टिविटी अच्छी होने लगेगी। और अगर हम समर सीजन में अर्ली सुबह कर ले रहे हैं और दिन के समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, 40-45 हो गया, विल्टिंग होने लगेगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी पुअर हो जाएगी, तो वो हमारा स्प्रे खराब हो सकता है। बट दो टाइम सही हैं, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग, एंड इट आल्सो डिपेंड अपॉन दी सीजन। तो जनरली क्या है, हमारा सेफर साइड पे क्या रहता है कि अगर हम 4-5 जगह कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, तो हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी मेंटेन रहेगी 2-3 घंटे तक, और रोलिंग लीव की नहीं होगी, विल्टिंग नहीं होगी। लेकिन सुबह के समय अगर हम समर सीजन में कर रहे हैं तो विल्टिंग अगर हो जा रहा है या बहुत लीव की रोलिंग हो जा रही है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लेकिन अगर टेम्परेचर मॉडरेट रहता है दिन के समय भी, तो हम अर्ली मॉर्निंग भी कर सकते हैं, मतलब सुबह जल्दी कर लें 6-7 बजे तक, और इधर शाम को 4-5 बजे तक करें जब धूप क्या हो जाए, हल्की हो जाए। सो दिस इज द गुड टाइम कि कब हमको स्प्रे करना चाहिए फोलियर न्यूट्रिएंट, जब हम एप्लीकेशन कर रहे हो, माइक्रोट्रेंट हो, चाहे जिंक सल्फेट हो, चाहे यूरिया हो। तो ये 2 टाइम हमारे लिए सही है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि हमारा विंटर सीजन है या समर सीजन है। तो जो हमारा सेफर साइड पर रहता है वो इवनिंग का रहता है, क्योंकि उसके बाद धूप तो निकलनी नहीं है, इवनिंग के बाद रात हो जाएगी और ह्यूमिडिटी मेंटेन रहेगी, इस पर बना रहेगा, और मॉर्निंग में एक चांस हो सकता है कि धूप बहुत ज़्यादा तेज हो जाए तो एवापोरेट हो सकता है। तो लेकिन अगर विंटर सीजन है तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ये प्रॉब्लम समर सीजन में आ सकती है। तो हमारा सेफर साइड पे क्या रहेगा, लेट इवनिंग अगर हम कर रहे हैं तो ये हमारे लिए सेफ है, और सो दैट न्यूट्रिएंट इज एब्जॉर्ब्ड प्रॉपरली। सो दिस इज द करेक्ट टाइम ऑफ एप्लीकेशन, आइदर अर्ली इवनिंग और लेट, अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग। तो या तो सुबह करें या शाम को करें, और लेकिन बहुत ज़्यादा देर में ना कर दें। अगर हमने शाम को बहुत ज़्यादा देर कर दी तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेट हमें कर देना है। लेट इवनिंग का मतलब यह है कि जब सनलाइट धीरे धीरे कम होने लगे तो अब हम इसको करना चाहिए, फोलियर जो हम एप्लीकेशन कर रहे हैं न्यूट्रिएंट का। सो दिस इज द करेक्ट टाइम, means the maximum stomata are open, then we should spray the nutrient, and maximum stomata are open either in early evening, early morning or late evening. Thank you very much.